and this one is very important, as I said, average velocity और स्पीड आई एम सेइंग, बिकॉज स्पीड के लिए सिर्फ डिफरेंस हो जाएगा, कहां पे डिफरेंस आएगा, ओनली फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहां पे डिस्टेंस हो जाएगा, तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों के न्यूमेरिकल्स तुम्हें सेम मिलेंगे। अब मान लो ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद एंड मूविंग s1 displacement for t1 time, s2 displacement for t2 time, and similarly sn displacement for tn time। ये डिस्प्लेसमेंट बोलो तो वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस बोलो तो स्पीड होगा, इसलिए मैं वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूं। सो एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस वन इज द बेसिक फॉर्मूला। अब दो केसेस लेते हैं। केस वन, a body is moving with its velocity v1 for t1 time, with velocity v2 for t2 time, and with velocity vn for tn time. Find its average speed. Case 2. अब ट्राई करो केस 1। Body is moving with speed v1 for s1 displacement. स्पीड या वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस बोलूंगा, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। v2 s2 डिस्प्लेसमेंट सपोज वेलोसिटी है, vn sn displacement. Find average velocity in both the cases. If it is speed and distance, then speed, speed and distance, then speed. तो average velocity और average speed आप लोग को बताना है। Rule says total displacement. So rule is this, and as per rule we have time, so we don't worry, in this case डिनोमिनेटर में सब सही है, न्यूमरेटर में देखते हैं s1 दिया हुआ है, and here it is velocity. What is the relation between velocity and displacement and time for any short time? So velocity is displacement upon time. So what about displacement? Velocity into time. So for small duration, this s1 can be treated as or taken as v1 t1. Similarly, s2 can be taken as v2 t2. Similarly, Sn can be taken as Vn Tn. तो बस मैं S1 दिया नहीं था, V1 दिया हुआ था, तो आंसर हमेशा नोन टर्म में चाहिए। अच्छा, नोन टर्म मींस जो टर्म क्वेश्चन में दिया गया, हियर आई वांट एवरेज इन टर्म्स ऑफ VNS. I don't want time here because time is not given. Similarly, here I want average speed in terms of VNT. I don't want you to use S1 S2 because S1 S2 is not given. So S1 S2 has to be replaced. तो S1 V1 T1, V2 T2, Vn Tn, ये इसका फॉर्मूला। अभी इसमें एक स्पेशल केस लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड हियर आई नीड दिस, S1 is there but time is not there. What should I do? I have to replace time with VNS. So just before this question here, we have gone through S is equal to Vt. So time is equal to S upon V. So to proceed, you just keep S1, S2 there and just replace T1 as S1 upon V1, T2 as S2 upon V2, Sn upon Vn. This is the right answer. अब एक स्पेशल केस पूछा जा सकता है आपसे, T1 is equal to T2 is equal to Tn. मान लो सारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बॉडी इज मूविंग विद v1 स्पीड फॉर टाइम t, v2 स्पीड फॉर सेम टाइम, v3 स्पीड फॉर सेम टाइम, vn स्पीड फॉर सेम टाइम. So time is same. If time is same, what will be happen here? T will remain same. You can take t out. Here t plus t, if there is 2, it will become 2t. T plus t, if there is 3, 3t. 4 times 4 हो जाएगा. So average will become V1 plus V2. This will be the answer. The body is moving with the speed velocity V1 for time t, or some time with velocity V2 for same time, with velocity V3 for same time. ऐसे ऐसे करके तो ये आंसर आ जाता है. Similarly यहाँ पे भी, if
इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी में या स्पीड में, तो सबको s मान लो। तो ऊपर होगा s s s n टाइम्स तो ns, नीचे s कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं n अपॉन, आई एम सॉरी ये v1 है, ये आंसर हो जाएगा। दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, टाइम इज नॉट गिवन बट सम टाइम एंड नेक्स्ट सेम टाइम इक्वल टाइम। तो केस नंबर 1 है पिछले में, इधर देखो, अगर टाइम सेम है, ओनली 2 केसेस है, तो v1 प्लस v2 और नीचे 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा v1 प्लस v2 बाई 2, सीधे सीधे। What about अगर ये होता a body is moving with speed v1 for some time with v2 for next same time and with this speed v3 for next same time, what is the average speed v1 plus v2 plus v3 by 3। अगर 4 होता तो by 4, n है तो by n। कितना सिंपल केस हो गया ये, आपने प्रीवियसली पढ़ लिया। तो अगर नहीं भी पढ़ा होता तो आपको क्या करना था ऐसे केसेस में, आपको ऐसे करना था, v1 से चल रहा है मान लो t टाइम, v2 से चल रहा है मान लो t टाइम, एवरेज हो जाता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें पता है ये डिस्प्लेसमेंट होगा s1 v1t, ये डिस्प्लेसमेंट होगा s2 v2t, सो v1t प्लस v2t अपॉन 2t, t कैंसिल कर देना, ये आंसर आ जाता। ये एग्जांपल 2, अ बॉडी इज, ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। एवरेज स्पीड ये है सेकंड केस, सेकंड केस में डिस्टेंस दिया हुआ है एंड इसको मैं हटा देता हूं, एक सेकंड अभी थोड़ा टाइम। हाँ, स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, आंसर डिस्टेंस और स्पीड में आया, टाइम को हमने हटाया था। एंड सेम डिस्टेंस, अगर से सेम डिस्टेंस है तो n अपॉन 1 बाई वी वन 1 बाई वी टू, ऐसे अगर n है तो n 2 हो सकता है तो 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू, 3 हो सकता है तो 3 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री। जितना नंबर हो उतना यहां लिखो और उतने टर्म तक आगे लेके जाओ, आंसर डायरेक्ट आएगा। इसीलिए ये रूल पढ़ाया जाता है सो दैट इजी हो जाए आपके लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू केस 2 इट शुड बी 3 अपॉन, आई एम सॉरी 2 ही केस है, 2 अपॉन 1 बाई वी वन और ये 2v1 v2 v1 प्लस v2 आ जाएगा सॉल्व करके। 3 होता तो 3 बाई 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री। अल्टरनेटिवली यू कैन सॉल्व बाई यूजिंग दिस मेथड जो मैंने डिराइव करते टाइम यूज किया था। बॉडी v1 स्पीड फॉर सम डिस्टेंस, v2 स्पीड फॉर नेक्स्ट सेम डिस्टेंस। अब एवरेज के लिए क्या करते, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखते। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम s अपॉन v1 s अपॉन v2, s कॉमन लेके कट देते, यही आ जाता। तो डिराइव भी कर सकते हो बिकॉज यू नो द मेथड नाउ, दैट इज द एक्चुअल मेथड ऑफ लर्निंग। ये एग्जांपल 3 है, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो बहुत ही बेसिक रूल से फिर थोड़ा स्मार्ट रूल से। तो सॉल्यूशन मेथड 1, मेथड 1 बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको डिराइव करना सिखाया है, डिराइव करना सिखाया। बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v1 फॉर सम टाइम, लेट द टाइम इज t, एंड विद नेक्स्ट सेम टाइम में, टाइम सेम है, वो v2 और v3 चलता है इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस। ये अब एवरेज निकालना है आपको। एवरेज की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज s1, तो s1 प्लस 2s अपॉन 2t। दिस वन इज एज पर द डेफिनेशन। s1 it can be written as v1 t1, t1 is t and s क्या 2s क्या लिखा जाए, इसमें थोड़ा एक पंगा है, तो उस पंगे को मैं सॉल्व करता हूं। मान लेते हैं यहां पे लगा t2 टाइम, यहां पे लगा t3 टाइम, तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू दिस s v2 t2, तो
T2 is equal to S by V2, T3 is equal to S by V3 सिमिलरली। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? ये V2 V3 दिया हुआ था, मैंने एज्यूम इक्वल डिस्टेंसेस दिया हुआ था, फर्स्ट टी टाइम में V1 चला और अगले सेम टाइम में, तो टी मैंने माना है, तो अगले टी टाइम में उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया मोशन को, V2 फॉर सम डिस्टेंस और V3 फॉर सेम डिस्टेंस। तो अब क्या हो गया, यहां पे भी कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन जितना भी टाइम लगा होगा उन दोनों को जोड़ा जाए तो टी आता है, तो दोनों को मैं जोड़ता हूं, टी लिख देता हूं, तो T1 प्लस T2, आई एम सॉरी T2 प्लस T3 इज इक्वल टू टी, तो S अपॉन V2 प्लस S अपॉन V3 इज इक्वल टू टी। तो ये आ गया टी की वैल्यू, तो टी आ गया इन टर्म्स ऑफ S। और अब यहां से हम लोग S कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कर लेता हूं, तो बेटा S आ गया T अपॉन 2S था, तो 2T 1 बाई V2 2 टाइम्स T अपॉन 1 बाई V2 1 बाई V3 अपॉन 2T, तो T खत्म कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो V1 प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 अपॉन सबका 2। थोड़ा अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, तो आप सब समझ लोगे, V1 V2 V1 V3 2V2 V3 विदाउट एरर, ये आंसर आपका आ गया, बट ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। अब देखो इसको, क्वेश्चन को देखते हैं, V1 से सम टाइम जा रहा है, मान लो टी टाइम, नेक्स्ट सेम टाइम हो जा रहा है विद स्पीड V2 एंड V3 फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, ये केस हो गया। तो अगर मैं इसको मान लो V1 से फॉर सम टाइम और V2 डैश, इन दोनों का एवरेज निकाल लूं, और वो मान लो V2 डैश है सेम टाइम, तो मैं एवरेज लिख सकता हूं, सेम टाइम केस 1 हुआ, पेज पलटो और केस 1 देख लो, चलो कुछ बच्चे बाद में आए होंगे उनको बता देता हूं, केस 1 ही है, सेम टाइम में टाइम अगर सेम है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाई n हो जाता है, 2 है तो V1 प्लस V2 बाई 2, अगले पेज में वो भी बताया था मैंने, V1 प्लस V2 बाई 2, ये V1 प्लस V2 बाई 2 अगले पेज में बताया था मैंने, और इक्वल डिस्टेंसेस वाला बताया था 2 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 डिराइव करके। और अब यहां पे आ गए हम, अब ये हट जाए, तो ये इक्वल टाइम वाला V1 प्लस V2 बाई 2, अब ये V2 क्या है, V2 के लिए अलग से लिख, V2 डैश इज द एवरेज फॉर दिस, एवरेज फॉर दिस, सो V2 डैश इज 2V2 V3 अपॉन V1 प्लस V2, एवरेज अगर इक्वल डिस्टेंसेस हो तो ये आता है, ये भी केस 2 में बताया था, 2 का करस्पॉन्डिंग एग्जांपल 2 था, तो ये हो जाएगा V1 प्लस 2V2 V3, ये V2 है, ये V3 है, V2 प्लस V3 अपॉन 2, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द सेम। तो ये कम लाइन में कम टाइम में सॉल्व हो गया, उसे हमने ज्यादा लाइन और ज्यादा टाइम लिया। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एग्जांपल, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ IE इरोडोव। इक्वल टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, इस पार्ट में इस पार्ट में, यही क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे डायरेक्ट मैं लिखना सिखाता हूं आपको, V2 डैश, तो अब आपका फॉर्मूला होता है 2 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ऐसे केसेस में तो डैश हो गया। अब एवरेज फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यू नो इट इज V1 प्लस V2 बाई 3, 2 आता था, अब यहाँ V1 नहीं है V2 है, V2 नहीं है V3 है, V2 प्लस V3 बाई 2, सो दैट्स ऑल, नाउ खत्म हो गया मामला।
ये हो जाएगा सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करके डायरेक्ट सॉल्व करना सीखोगे आई होप, नोट कर लीजिए आप सब लोग, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट पॉसिबल मेथड, तीनों पार्ट। अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन एस सी वर्मा का है, अभी नए वाले एडिशन में है, पेज 41, पार्ट 1, पार्ट 1 वाला। अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर and 8 kilometer 8 kilometer per hour for 2 किलोमीटर तो एवरेज बताना, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। देखो क्लास में अभी अभी हमने आज किया है, S1 S2 V1 V2 एवरेज निकालना है सीधे सीधे। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। तो सब कुछ है, किलोमीटर है, आर है, तो कुछ करना नहीं आपको। 1 and 2 3, 1/6, 2/8, so it is, ये आंसर है, ये 1 है। आई एम सॉरी, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, मैं खुश हो रहा था कि एस सी वर्मा में गड़बड़ मिल गया मुझे, ये 1 है। तो नेक्स्ट वाला भी 1 है, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो ये 2 हो जाएगा। फोर्टी 48/7, लगभग लगभग 7 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।